ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ইংরেজি 1961 সাল। দোলের ঠিক আগে বাবা পুরী থেকে অনেক দিন পর কলকাতায় আসছেন। হাওড়া স্টেশনে সেই জন্য ভক্তরা সকাল থেকে অপেক্ষা করছেন, কারণ ট্রেন যখন হাওড়ায় এসে পৌঁছানোর কথা তার থেকে অল্প দেরি হচ্ছে। আর যারা এসে অপেক্ষা করছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন সেই সময়ের পুলিশের অধিকর্তা তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পরবর্তীকালে আমাদের অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের সুযোগ্য সর্বাধীশ রূপে গুরু সেবার দায়িত্বটি নিখুঁতভাবে পালন করে গেছেন। তিনি মহিমা আনন্দদেব, তিনি তখন তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিচয়ে কর্মরত রয়েছেন। তা যারা অপেক্ষা করছেন তাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের পরিচিত ছিলেন, যেমন জিতেনদা ছিলেন, যিনি ল্যান্ড রেভিনিউয়ের সেক্রেটারি ছিলেন বিভাগের, আর জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় খুবই বড় মানুষ ছিলেন এবং মহামিলন মঠের যে জমি সেইটি ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। শুধু এইটুকুই তার যে গুরু সেবা তা তো নয়, সারা জীবন তিনি বহুভাবে গুরু সেবা করেছেন। উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, যার সুযোগ্য পুত্র বিশ্ববন্দিত দার্শনিক অধ্যাপক অরিন্দম চক্রবর্তী, যিনি শ্রী শ্রী ঠাকুরের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং আদরের দুলাল কিঙ্কর অভয়ানন্দজি, সেই নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী তিনি উপস্থিত আছেন। রাসগোপাল দা আছেন, এমনকি ঠাকুরের মানে যাকে তিনি বাবা বলতেন, মানে ঠাকুরের যিনি পরবর্তী জন্মে যিনি পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায় হয়ে এসেছেন, প্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়ের পরের জন্ম হচ্ছেন পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়, বালি কেদার ভবনের আমরা সবাই জানি, তিনিও রয়েছেন। তার মানে বিশিষ্ট জনেরা সকলেই রয়েছেন। এদের মনে হচ্ছে যে এসেছি সকালবেলায়, তখন তো ফুল জোগাড় করতে পারিনি, একটু ফুল জোগাড় করতে পারলে ঠাকুরের চরণে দিলে বড় আনন্দ হতো। কিন্তু তখন ফুল আনার সম্ভব নয়। হঠাৎ কি যে হলো, ওই স্টেশনে ওনাদের সামনে একজন অনেক ফুল টুল নিয়ে এসে উপস্থিত, এবং সে ফুল বিক্রি করবে তা দেখে এদের খুব আনন্দ হলো এবং ফুল ওরা কিনলেন, এবং সেটা বাজারে যা দাম তার অর্ধেকেরও কম দামে তাদের ওই যিনি ফুল বিক্রি করতে এসেছিলেন তিনি দিলেন। তা ফুল
নিয়ে ওরা অপেক্ষা করছেন, এবং ঠাকুর যখন হাওড়া স্টেশনে এসে পৌঁছলেন তখন 9:40 সকাল। এই তারা গুরুচরণে ফুল টুল দিলেন। ঠাকুরকে এর মধ্যে প্ল্যাটফর্মে এত মানুষ এসেছেন গুরু দর্শনে, ট্রেন থেকে প্রায় নামানো যাচ্ছে না। তা তখন আমাদের একজন ঠাকুরের, এটা বহু পুরনো কথা, অন্য একজন সদানন্দজির কথা আমরা প্রায় বলি, তো তিনি ছিলেন। তিনি ঠাকুরকে ট্রেন থেকে সাবধানে মানুষজনের ভিড়কে একটু পাশ কাটিয়ে একটি নিরাপদ জায়গায় বসালেন এবং গুরু পূজা হলো। এরপর ঠাকুর স্টেশন থেকে ওই ভিড় সামলিয়ে বাইরে এলেন। এসে মহিমানন্দজির গাড়ি, তখন তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তার গাড়িতে উঠে বসলেন। তবে তার আগে উনি ওই পুজো টুজো হয়ে যাওয়ার পর যখন মহিমানন্দ দেবের সঙ্গে তার দেখা হলো মহিমানন্দ দেব তো গেছেনই গুরুদেবকে, তিনি স্টেশনে গেছেন, দর্শন করবেন তাকে, কিন্তু সেদিন যে তার ভাগ্যে অত কিছু পাওনা রয়েছে সেটা তো তখন তিনি জানেন না। চোখে চোখ পড়তেই ঠাকুর তাকে বললেন, আরে মাই কেমন আছেন, ওনার স্ত্রী শান্তামা, তার খবর নিলেন। কারণ শান্তামায়ের তখন একটু বোধহয় চিকিৎসার জন্য তিনি তখন কোনো এতে ভর্তি ছিলেন, হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন, বা একটা কোনো চিকিৎসা তার হয়েছিল সেই সময়। ঠাকুর তার দৈনন্দিন সংবাদের এবং অসুবিধাগুলির সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে ছিলেন, অবহিত ছিলেন। তিনি বললেন, বাবা ভালো আছেন। এরপরে ঠাকুর বেরিয়ে এসে মহিমানন্দজির গাড়িতেই উঠলেন। মহিমানন্দজি তখন, তার ড্রাইভার তখন সেই সময় উপস্থিত নেই এবং উনি অপেক্ষাও করতে চান না। ঠাকুর উঠলেন, সঙ্গে সেবাদাকে নিয়ে উঠলেন। মহিমানন্দজি নিজেই গাড়ি চালাবেন এই ঠিক হলো। তিনি উঠে গাড়িতে বসলেন, চালকের আসনে বসলেন এবং ঠাকুর তখনও বলছেন না যে কোথায় যাবেন। পেছনে সেবাদা রয়েছেন আর ঠাকুর, আর সামনে চালক হচ্ছেন মহিমানন্দ দেব। 1961 সাল দোলের আপনার 2 দিন আগে কথা। তা বাবা স্টেশন পেরিয়ে গেল, তারপরে হাওড়া ব্রিজ পেরোনো হলো। মহিমানন্দজি এরপর বাবা বলছেন না কোথায় যাব। তিনি 2 বার জিজ্ঞাসা করেছেন, 3য়-বার বাবা বললেন চুঁচুড়ো যাব। তখন মহিমানন্দ দেব গাড়ি সেই দিকে ঘোরালেন এবং চুঁচুড়ো যাওয়া হচ্ছে, সেবাদা নাম করছেন। যখন চুঁচুড়োতে তিনি প্রবেশ করলেন, ঠাকুরের ওই সেবাদার কণ্ঠের নাম শুনে শহরের মানুষ, গাড়ি তো তখনকার রাস্তাঘাট তো ছোট, আর চুঁচুড়ো শহরে প্রাচীন জনপদ, কাজেই সেখানে ঘন বসতি, মানুষের তো ওই অত অল্পতেই তাদের সেবাদার ওই কণ্ঠের নামেই তারা অত্যন্ত পরিচিত, এবং ঠাকুর যে আছেন গাড়িতে ওই নামটি হচ্ছে তার চিহ্ন। তো তারা সকলেই খুব উৎসাহী হয়ে পড়লেন এবং দেখতে দেখতে দুপুর হয়ে গেল। তখন ঠাকুর চুঁচুড়োতে যেখানে যাবেন সেই জায়গায় এসে পৌঁছলেন। তার মাঝখানে ঠাকুরকে
অনেক প্রাচীন আমাদের গুরুগণ ছিলেন রাজলক্ষ্মী মা। তিনি ঠাকুরকে একবার রাস্তায় দাঁড় করিয়ে একটু ফুল টুল দিয়ে পূজা করলেন। ঠাকুর আসছিলেন তাঁর ভিক্ষা মায়ের আশ্রমে। এই আশ্রমটি তৈরি করে দিয়েছিলেন পরম পূজনীয়া যোগমায়া মা এবং কৃষ্ণা মা। এদের সেখানে গুরু সেবা ছিল এই আশ্রম নির্মাণে। ঠাকুর সেই তার ভিক্ষা মায়ের আশ্রমে এলেন গঙ্গার ধারে। সেখানে এসে পৌঁছে তিনি বললেন যে দেখ, এই আশ্রমে একেবারে অন্য কিচ্ছু যদি কেউ সাধন ভজন করতে নাও পারে, শুধু গঙ্গার দিকে চেয়ে বসে থাকে, তাহলেই তার কাজ হয়ে যাবে, আর কিচ্ছু লাগবে না। এত সুন্দর পরিবেশ, এখানে এসে মন জমাট বেঁধে যাচ্ছে, এত ভালো পরিবেশ। এবার সেখানে খানিকক্ষণ থাকার পরে ফল ভোগ টোগ ইত্যাদি হলো। ঠাকুরের আর অন্য ভোগ ওখানে ব্যবস্থা করার মতো ইচ্ছা ছিল না, মানে তিনি অন্তত সেরকম কথা কিছু বলেননি। তা কিন্তু যারা এই সেবাতে পরবর্তীকালে মানে নিত্য নিয়োজিত থাকবেন, সেই যোগমায়া মা, মঞ্জু মা, তখন তিনি ওই নামেই পরিচিত, এবং কৃষ্ণা মা, তারা ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করলেন যে বাবা একটু অন্নপ্রসাদ ভোগ নিয়ে গেলে হয়, এত দূর থেকে আসছেন, পুরী থেকে এসেছেন, সারা দিন কিছুই গ্রহণ করা হবে না। তাঁদের প্রার্থনায় ঠাকুর সম্মতি দিলেন। সম্মতি দেওয়ার পরে তখন ঠাকুর কিন্তু মানে খুব খুব নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া কারো হাতে অন্ন তো নিতেনই না, ভোগ হতো না। তো যোগমায়া মা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তার হাতে ভোগ সেই সময় হবে না। তা ইয়েতে শেষে ঠাকুর নিজে করবেন, রান্না করবেন। এই রান্না করার কথায় মনে পড়ে যে বোমানন্দজিও এইরকম মানে প্রয়োজনে কখনো রান্না করেছেন, আমরা দেখেছি। এখন সেটা তো খুব বড় কথা, রান্না করার থেকেও বড় কথা হচ্ছে মানে এরা একটা ভূমি থেকে আরেকটা ভূমিতে অবতরণ করে যা করেন সেটা এত নিখুঁত যে বলার নয়। তাই শ্রী ঠাকুর তিনি মহিমানন্দ দেব সেই সময় ঠাকুরের নির্দেশে নিত্য হবিষ্য করেন। ঠাকুর মহিমানন্দ দেবকে বললেন যে দেখ, তুই তো হবিষ্য করিস, সীতারাম ডাল তরকারি যদি রাঁধে তাই তুই নিবি তো? মহিমানন্দ দেব তিনি ভাবলেন যে রঙ্গনাথের এই কি লীলা। তিনি তো মানে হাত জোর করে বললেন যে যজ্ঞেশ্বর তিনি যখন স্বয়ং রান্না করবেন তখন তার প্রসাদ নেবে না, এরকম কি কেউ আছে? ঠাকুর একটু স্মিত প্রসন্নতা ব্যক্ত করলেন। তারপরে তিনি নিজে রান্না করলেন। এবার মহিমানন্দজির ভেতরে বেশ কষ্ট হচ্ছে, কারণ তিনি ভাবছেন আমার থেকে কি হলো, বাবা নিজে রান্না করছেন, আমি থেকেও কিছু করতে পারলাম না, আমি সেই অধিকার পাইনি যে তার এই সেবাটুকু করব, তাকে এত কষ্ট করে এসে আবার এখন দুপুরবেলায় রান্না করতে হচ্ছে।
নিজের মনে মনে নিজেকে খুব তিরস্কার করছেন। কত ভালোবাসা, দেখুন গুরুর প্রতি কত ভালোবাসা। রান্না শেষ হলো, ঠাকুর তাঁর ঠাকুরের কাছে সমস্ত ভোগ প্রস্তুত করে নিয়ে গিয়ে রেখে তিনি বললেন যে ঠাকুর ঠান্ডা হলে খেও, এই কথা বলে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। এই ভোগ দেওয়া হয়ে গেল, কিন্তু ঠাকুর ঠান্ডা হলে খেও। এই দেখুন, আমরা কেউ এরকম প্রাণ থেকে বলতে পারি না, কিন্তু এইভাবেই যে দিতে হয়, এটা ঠাকুর আমাদের কতবার বলে শিখিয়েছেন যে একবারে নিজের সব থেকে প্রিয় কাছের মানুষকে ঠিক যেভাবে দাও সেভাবে দেবে। মন্ত্র তন্ত্র কিছু চাই না, খালি তোমার প্রাণ থেকে তুমি দাও, তিনি নেবেন। ঠাকুর ওইটুকু বলে ওটা রেখে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এরপরে মহিমানন্দ দেবকে তিনি আবার ধরেছেন, ধরে বললেন, হ্যাঁ রে, ইয়ে কর, কি বলে, তুই প্রসাদটা বাড়, ভোগটা বাড়। মানে ঠাকুরের ভোগ হয়ে যাওয়া, মানে তার ঠাকুরের ভোগ হয়ে যাবার পরে প্রসাদটা বেড়ে দেওয়ার কথা বলছে। মহিমানন্দ দেব একেবারে বিস্মৃত হয়ে গেছেন, কিংকর্তব্য বিমূঢ়। কারণ ঠাকুর তারপরেই বলছেন যে তুই রাঁধতে পাসনি বলে তুই মনে কষ্ট পেয়েছিস, তো সীতারাম তোর হাতে ভোগ নেবে, তুই ইয়ে কর, কি বলে, প্রসাদ ভোগটা বেড়ে নিয়ে আয়। মানে যখন ঠাকুর নেবেন তখন তার ভোগটি বেড়ে দেবেন, তার মানে সে ঠাকুর তার স্পর্শ করা অন্ন গ্রহণ করবেন, এই কথা বললেন। মহিমানন্দ দেব তিনি যখন অন্ন মানে ঠাকুরের ভোগ যখন বাড়তে গেছেন, তখন দেখলেন যে ঠাকুর হবিষ্যান্নই করেছেন, দিলেন। আর ভেতরে ভেতরে তার একটা এমন প্রত্যয় হলো যে আমি মনে মনে ভাবলাম, আর তিনি সমস্ত কথা জেনে গেলেন। তা এরকম ঘটনা তিনি তো জীবনে বহু পেয়েছেন, তার এই একটি তিনি সেই সময়ের আমাদের পত্রিকায় জয়গুরুতে এ করেছিলেন, কি বলে, প্রকাশ করেছিলেন। আমরা এই ঘটনাটি তার সেই সূত্রেই মানে উল্লেখ করলাম যে মহিমানন্দ দেব তিনি শ্রী শ্রী ঠাকুরকে অন্তর্যামী রূপে এইভাবে, মানে অনেক ঘটনা আছে যা আমাদের মানে তার গুরু পূজার সময় যথাযথ কালে সেগুলি উপস্থিত হবে। তার মধ্যে এটি একটি তখনকার ঘটনা, আজকের উপচার। কারণ এটার মধ্যে শিক্ষা আছে, এটার মধ্যে ভক্ত ভগবানের লীলা আছে, এর মধ্যে ঠাকুর নিজেকে একটু আমাদের কাছে ধরা দিচ্ছেন বই কি। যখন তিনি মহিমানন্দ দেবকে বলছেন, তখন অন্তরালে আরেকটা বলা থেকে যাচ্ছে, যে সেটা হলো, তুমি যা ভাবো, যা তুমি এরপর ভাববে, সব আমি জানি। এইটি তো এই মহিমানন্দজির যে কণ্ঠস্বর আমরা শুনলাম, তার বার্তা, সেখান থেকে তো আমরা এটাই পাই, এটাই পেলাম। এখন আমরা এর পরে আমরা পুরনো লীলা কথাতে
फिरे जाबो आवार। तो उस समय बाबा वाराणसी में गए थे और अन्नपूर्णा मंदिर का सेवक, मंदिर का सेवक जो काशीनाथ जी, जो हमारे गुरु भाई थे, उनके मकान पे बाबा पधारे और ठहरे भी, उधर बाबा रहे और काशी में नाम प्रचार हुआ। जब उधर बाबा थे तब ऐसा था कि पहले हम कह चुके हैं कि पहले जाके वो सत्यदा जहाँ बाबा को ले जाकर रखे थे, उधर तो 2-4 जो बाबा का साथी, बाबा का साथ उनका व्यवस्था हुआ था, पर बाकी 37 जो आदमी भक्त बाबा के साथ थे, बाकी सबको तो उस जगह के पास एक धर्मशाला में रहना पड़ता था। तो मन में दुख हुआ था, बाबा इसका भी समाधान किए थे। तो ये जो काशीनाथ जी के घर पे अभी हैं बाबा, नाम प्रचार भी चल रहा है और उसमें 2 जो नवयुवक अभी बाबा के नाम प्रचार के जो संगी लोगों के साथ जुड़ गए, इतना तक तो हम गत सप्ताह में स्मरण किए हैं। अब आज हम देख रहे हैं कि वहाँ वो रहने के समय ऐसा हुआ था कि उधर उनके घर पे टॉयलेट तो एक स्थान पे 2 था और गुरु भाई लोग जहाँ ठहरे थे वो सबके सामने से ही जो घर वालों को भी उधर सबके सामने ही जाना पड़ता था। तो ऐसा था, शौचालय में जाने आने के लिए सबके सामने जाना पड़ता था। काशीनाथ जी का धर्मपत्नी, उनका शरीर बहुत खराब था, जैसे इतना खराब था कि सीधा होकर चल नहीं पाते थे। तो बहुत धीरे और बैठ के उनको जाना आना करना पड़ता। अब हमारे बाबा के वीर भक्त सुशील जी, जो बेलून, बंगाल में बेलून बोल के एक गांव है, उस गांव के रहने वाले थे। बाबा का वीर भक्त, बाबा एकदम जो है कि व्याजस स्तुति हर समय करते थे। उनका जो माने बाबा के साथ जो बातचीत होता था ना, वो अलग भाषा में होता था। बाबा उनको थोड़ा कहने का जो है कि जगह छोड़ देते थे, ठीक है कहो, वो अपने मन से कहते थे। पर पहले आप जब सुनेंगे तो पहले ऐसा लगेगा कि करवा बात बोल रहे हैं। अब ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि इस बात में कितना प्रेम है और कितना गहराई है। और असल में ये बात तो मंत्र हो गया, क्योंकि इस बात से वो सुशील जी तो बाबा का पूजन ही कर रहे हैं। यही था उनका बोलने का जो तरीका। अब इस दिन
हमारे काशीनाथ जी की जो धर्मपत्नी वो जा रही थी, बाबा के सामने से बैठ के जाना पड़ता था। पर तो सुशील जी आए और बाबा को बताया कि आपका शर्म नहीं लगता है, कितना कष्ट उठा के ये जा रहे हैं और आप चुपचाप देख रहे हैं। तो बाबा ऐसे बताए कि क्या करूं बता। तो सुशील जी ने बताया कि आप क्या कर नहीं सकते ये पहले बताइए, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या चाहते हैं, सबके सामने मैं हंडा फुटा दूं? बाबा चुपचाप रहे। फिर सुशील जी बताएं, नहीं, इसको ठीक करना पड़ेगा, इतने कष्ट सहते हैं, तो ये इतना कष्ट हो रहा है इनका, ये नहीं चलेगा, इनको ठीक करना पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। बाबा सुने, बाबा चुपचाप सुने, मतलब उनका प्रार्थना बाबा स्वीकार कर लिए। तो उसके बाद दूसरे दिन बाबा ने वो काशीनाथ जी और उनके धर्मपत्नी को फिर से दीक्षा में बैठाए, कृपा किए। कुछ दिन के भीतर, इस बीच में बाबा काशी धाम से कलकत्ता में लौट आए थे, पर कुछ दिन में ही खबर आया कि काशीनाथ जी के स्त्री का शरीर अब ठीक है, अब वो चल पाते हैं, ठीक है, वो सीधा होकर चल पाते हैं। मतलब प्रार्थना जब तक हम नहीं करते, बस उतना देर तक का ही अपेक्षा। बाबा के सामने अगर कुछ प्रार्थना पहुंच जाता, इतना दयाल ठाकुर अवश्य प्रार्थना पूर्ण करते थे। काशीनाथ जी ने बताए, उनके स्त्री ने बताए, सुशीलदा बताए, इनका काम हो गया। अब उधर से लौट के बंगाल के जिला बांकुड़ा, उधर एक गांव था। तब तो गांव में ही काम चलता था ना, गांव में ही पहले नाम प्रचार हुआ था। बाद में बाबा नगर में आए और उसके बाद बंगाल के बाहर भी कुछ नाम प्रचार ऐसा हुआ था। ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी लीला है ना। बांकुड़ा जिला में एक गांव है, बहुत इंटीरियर गांव, दशेड़े, उधर बाबा का आश्रम है। तो वहाँ चातुर्मास्य का व्यवस्था हुआ था उस समय। वाराणसी से लौटकर भी इधर ऐसा उस समय ऐसा हुआ था। हम जो सीताराम साहित्य में देखते हैं तो उधर ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो दशहरे में जो चातुर्मास्य हुआ था वो बाबा का 11 चातुर्मास्य था, 11वां चातुर्मास्य था, 11th। तो उधर आश्रम तो बड़ा था, एक बड़ा जो तालाब के जो एकदम पास ही बहुत अच्छा घर बनाया हुआ था बाबा का। ये बना था, साधन कुटीर था और एक देव पूजन का भी व्यवस्था था।
तो उधर नाम चल रहा है। तो 50 दिन उस बार नाम संकीर्तन हुआ था, नाम चल रहा है। और उस समय ऐसा था कि हमारे ठाकुर माँ कहते हैं हम लोग, तो मतलब बाबा की माँ गिरीवाला देवी, ये सब चातुर्मास्य में माँ थे उस समय। वो उधर ऐसा हुआ था कि एक परिवेश भी अच्छा है, सब कुछ है, और आम, बेल, तुलसी ये सब पेड़ है, और बहुत फूल बागान भी हैं, सबको परिवेश बहुत अच्छा है। तो बाबा जब विकाल में बाबा जब पाठ करते थे, क्योंकि चातुर्मास्य में तो तुलसी सेवा, कीर्तन, नाम प्रचार, पाठ, प्रार्थना ये सब तो होता था ना। तो पाठ होता था, विकाल में पाठ होता था। तो ये पाठ सुनने के लिए गांव-गांव से सब भक्त लोग पहुंचते थे वहाँ, साथ में हरिकेन लेकर आते थे, क्योंकि जब लौटेंगे तो रास्ते में तो अंधेरा हो जाएगा, इसलिए लंटन साथ लाकर सब पहुंचते थे। अब उस भक्तों के बीच एक आते हैं, आना जाना कर रहे हैं। उनका ऐसा था कि कभी चावल, दाल और सारे सेवा के जो होता है ये सब कुछ लाते थे। उस दिन पूरा एक कंधे केला लाया, सेवा के लिए लाए, और आश्रम पे आकर रखे, और बाबा को एकदम करजोर बताएं कि बाबा एक बार हमारा घर पे आप चरण धूलि दीजिए, आपको एक बार हमारे घर पे आना होगा बाबा, आइएगा, जरूर आइएगा। 3-4 दिन ऐसा चलते बाबा बताएं कि ठीक है, कल जाऊंगा तेरे उधर। तो जब बाबा दूसरे दिन बाबा तैयार हुए, सुबह सुबह बाबा बताए कि देखिए सामने जो गांव दिखाई दे रहा है, तो 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है, जाएंगे और आएंगे, ऐसा कोई खास नहीं। तुम सब इधर ही रहो, क्योंकि कीर्तन तो रक्षा करना पड़ेगा, कीर्तन चल रहा है। और कीर्तन का जो है कि सबका 2-2 घंटा 3-3 घंटा जो है वो पाली चलता था। उधर 2 घंटा ये करेंगे, 2 घंटा वो ऐसा ही चलता था। तो बताइए तुम सब इधर ही रहो। एक साथी को लेके बाबा निकले, और नाम करते हुए, उनका नाम था कन्हई। तो कन्हई जी के घर पे बाबा गए। तो सबका ऐसा उम्मीद था कि बाबा 2 घंटे के भीतर, 2.5 घंटे के भीतर जरूर लौटेंगे। तब अपेक्षा करते करते जब बहुत बेला हो गया, बहुत देर हो गया, तो सब का बड़ी चिंता हुआ कि भाई क्या हुआ, इतना देर क्यों, बाबा अभी तक आ नहीं रहे। इधर सब चल रहा है, ठाकुमा, फिर मध्याह्न जो भोग लगेगा बाबा का, ये सब तैयार कर रही है, सब कुछ ठीक ठाक आगे बढ़ रहा है, बाबा नहीं आ रहे, क्या हो गया। इस बीच एक भक्त उधर से आते थे,
और उन्होंने बताया कि भाई हम अभी देख कर आए कि बाबा को कन्हैया के घर पे बाबा समाधिस्थ हैं। तब तो जो है संगी लोगों के मन में थोड़ा ऐसा चिंता हुआ कि नहीं तब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जाके कीर्तन करेंगे तभी ना बाबा उतर आएंगे। क्योंकि जब समाधिस्थ होते थे बाबा तो सीताराम नाम कीर्तन करके ही बाबा को फिर हमारे बीच लाना पड़ता था। सीताराम कीर्तन चलता था, धीरे 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 बाबा फिर उतर आते थे हमारे सामने। तो करना पड़ेगा। तो चलो भाई, उधर 4-5 हमारे जो है संत जो गुरु भाई गए। वहाँ पहुँचने के बाद देखे कि दरवाज़ा तो बंद है और बाबा भीतर में समाधिस्थ हैं। तो एक गुरु भाई उन भीतर में जा बताया कि जय भाई ये काम करें, हम लोग जाके ये करें केवल कीर्तन करेंगे तो दरवाज़ा आप खोल दो, हम कैसे भीतर जाएंगे। और कीर्तन नहीं करेंगे तो बाबा का समाधि कैसे टूटेगा, व्यवस्था तो करना पड़ेगा। कन्हैया जी थोड़ा ऐसा ही था उनका मन में कि वो उन्होंने पहले तो स्वीकार नहीं किए थे, बाद में देखे कि ये संख्या है बहुत, तो फिर बताएं कि आप लोग इतनी संख्या में आ गए, हम अकेला कैसे बाबा, तो बाबा को तो रोक नहीं पाएंगे, आप ले जा सकते हैं पर अभी तो समाधिस्थ हैं, समाधि भंग होगा तब आप ले जाइएगा। तो बताया कि अरे भाई समाधि भंग होगा तो पहले हमको भीतर जाने दो, हम जाके सीताराम कीर्तन करेंगे तब ना बाबा का समाधि भंग होगा। बड़े कष्ट से कन्हैया जी दरवाजा खोले और भीतर जाके कीर्तन शुरू हुआ। धीरे धीरे 10-15 मिनट कीर्तन करने के बाद बाबा का समाधि भंग हुआ और बाबा ने आँख खोल कर देखे कि उधर मुकुंद जी हैं, हमारे प्रणवानंद जी हैं, हमारे आदित्य दा जो जिनके हम बहुत बार याद कर रहे हैं ना, वो भी थे, आदित्य कुमार दे। तो ये सब उधर गए थे। तो वो जाकर बाबा ने बताया कि अरे तुम लोग सब इधर आ गए तो उधर नाम बंद हो जाएगा ना। तो बताया कि नहीं बाबा, उधर नाम जैसे चले उसका व्यवस्था करके हम लोग आए। बाबा बोले तब तो ठीक है, पर बाबा का मन देखिए, बाबा हमारे जितने बाबा थे उतना ही माँ ही तो थे, माँ भी तो थे। इसलिए बाबा दूसरे बात जो कहे वो यह था कि बाबा ने बताया कि अरे सुबह से तो तुम लोग तो पानी तक नहीं पिया ना। तो बाकी तो लोग बताएं, शिष्य लोगों को बताएं कि हाँ बाबा ये तो है, पर आप भी तो कुछ नहीं लिए थे, आप भी पानी तक नहीं लिए तो हम लोग कैसे लेंगे, तो इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो बाबा फिर ऐसे बताएं कि ठीक है, देख ऐसा है कि हमको तो 10-15 मिनट के लिए वो कहा था कि एक बार 10-15 मिनट के लिए हमारे घर पे आप आइए, और आने के बाद देखो ये 3-4 घंटा हो गया, अभी कितना समय हुआ। तो बोले बाबा 1 तो बज गया, 1-1:30 बज गया। तो बताएं कि देखो 3-4 घंटा हमको इधर अटक करके रखा है। फिर ऐसा हुआ कि बाबा, ये बाबा का एक लीला ही है ना, उनको कौन बंधन कर सकता है, पर उनका घर में बाबा बैठेंगे, उधर समाधिस्थ होंगे, उनके ऊपर कृपा होगा, तभी ये लीला बाबा ने, बाबा ही इसका व्यवस्था किए थे। जो कुछ हुआ बाबा का इच्छा से ही हुआ, बाबा ही किए हैं। पर देखिए घटना देखिए,
बाबा कह रहे हैं कि देखो तुम लोग सब आश्रम पे जाओ, लौट के जाओ और जाके माँ को कहो कि ये कन्हई जो सेवा भेजा था ना, चावल दाल ये सब जो कुछ सेवा में इतना दिन दिया था, अरे वो सब में जहर मिलाया हुआ था। और उसके बाद उस बात के भीतर ऐसे सुनने में लगता है कि बाबा कन्हई जी के ऊपर कि थोड़ा बाबा विरूप हो गए। नहीं, सीधा आप सुनेंगे तो ऐसा ही लग रहा है कि देखो आज तक कन्हई जितना सेवा जो भेजे थे ये सब में जहर मिलाया हुआ था, माँ को जाके कहो। और दूसरी बात जो बताएं उसमें बताएं कि आज देखो उधर केला लेकर गया और केला दिखा के हमको घर पे लाए। ये दो जो बात है ना, इसके जहर के मतलब ये होता है बाबा का जितने नाटक है ना, ये नाटक बाबा लिखे हैं। बाबा तो अंतलीला में स्वयं नाटक किए हैं। विष्णु भगवान के चरित्र में बाबा खुद महामिलन मठ में नाटक किए थे। और जो है हमारे बाबा के जो साथी थे उन सबसे भी बाबा नाटक करवाते थे। श्याम संघ, श्याम नगर के जो गुरु भाई लोग, डोमरदा के गुरु भाई लोग, भद्रेश्वर के गुरु भाई लोग, ये सब बड़े प्रेम से बाबा का नाटक मंचस्थ करता था। और सब भक्त लोगों को लेकर बाबा सारे रात नाटक देखा करते थे। जब देखा करते थे उस समय बाबा पूरा नाटक का जो है ना संलाप पूरा उनका याद रहता था। ये हम कई बार देखे हैं कि जो अभिनय कर रहे हैं वो कहने के पहले ही बाबा कह रहे हैं। और ऐसा है बाबा बीच बीच में समाधिस्थ भी हो जा रहे हैं। कभी बाबा का आँख से आंसू बह रहा है, प्रेम का प्रेमाश्रु बह रहा है। तो बाबा कहा करते थे कि देख इसके जितने जो नाटक है ना उस सब में प्रेम का पॉइजन, प्रेम का जहर डाला हुआ है। एक जहर डाला हुआ है, वो जहर है प्रेम का। अगर ये नाटक तुम देखोगे, ये नाटक तुम पढ़ोगे, ये नाटक में ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा प्रेम लाभ हो जाएगा। क्योंकि ये नाटक से लीला चिंतन हो जाता है। और नाटक जो है ये भगवान श्री रामकृष्ण ने बताए थे कि देख नाटक में लोक शिक्षा होता है। और हम देखते हैं कि सीताराम नाटक लिखे हैं, किए हैं, करवाए हैं, सबको लेकर नाटक आस्वादन कर रहे हैं। और श्री रामकृष्ण भी कलकत्ता में जाके वो रंगमंच में पहुंच के नाटक देखते थे। ये एक अद्भुत सादृश्य है लीला में। नाटक तो महाप्रभु भी करते थे और स्वयं किए थे भी। विश्वम्भर का चरित्र में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नाटक किए थे, वही अंतलीला में ही किए थे। आप नदिया नागर देखिएगा, बाबा स्वयं लिखे हैं, उसका वर्णन है उसी में। तो अभी इधर जो चल रहा है, हम बताएं ना कि बाबा ने बताया कि देखो वो जो सेवा भेजा था उसमें जहर है। जहर के मतलब इधर ऐसा है कि उसमें ये कन्हई का प्रेम है, ये बाद में पता चलेगा। अभी तो ऐसा लगता है कि देखो ये कितना दुष्ट है, घर में ऐसा लाकर एकदम दरवाज़ा बंद करके रख दिया, अटक कर दिया, हमको जाने नहीं दे रहा है, ऐसा सुनने में लगता है। लेकिन ऐसा नहीं था। तो उधर से सब तो बाबा कहीं गुरु आदेश से सब तो लौट के गए, जितने आए थे वो लौट के गए।
और दो एक जो है हमारे संत गुरु भाई वो रह गए। उसमें से हमारे प्रणवानंद जी, जिन्होंने हमारे संप्रदाय के जो जितने सूर्य हैं उनका वही आचार्य है और सृष्टा भी है। तो सुर लहरी के ग्रंथ उनका ही लिखा हुआ है। हमारे संप्रदाय में जितने सुर में नाम कीर्तन होता है वो प्रणवानंद जी का ही दिया हुआ है। बाबा उनको यह सेवा सौभाग्य दिए थे। तो प्रणवानंद जी और सदानंद जी, मतलब ये वसंत मल्लिक, इनका जो कहानी मैं पहले ही याद कर चुके थे। तो आज ऐसा है कि ये दो तीन हैं वो अभी हैं बाबा के पास सामने, क्योंकि कन्हई जी तो दरवाजे में ताला लगा दिया, बाकी सब तो गुरु भाई तो बाबा कहे और सब लौट गए। बीच में बाबा एक बार बताए कि देख ये सुबह से तुम तो ऐसा हुआ, हमको थोड़ा समय के लिए चलिए बोलकर इधर लाया और लाके तुम रख दिया। तो कन्हई जी बताए कि आप आके अगर तुरंत हम जो मांग रहे हैं वो दे देते तो इतना देर थोड़ी होता। तो बाबा ने आप बताया कि ये कोई मामूली बात नहीं, तुम जो मांग रहे हो वो तो एक खुद गुरु देव दे सकते हैं, और किसी का हिम्मत नहीं, किसी का क्षमता नहीं है कि वो चीज़ किसी को दे। ऐसा है कि उन्होंने फिर बाबा ने बताया कि तुम इष्ट दर्शन करना चाहते हो तो इष्ट दर्शन कराना तो गुरु का काम होता है, और गुरु तभी करा पाते हैं, शिष्य को इष्ट दर्शन तभी करा पाते हैं जब शिष्य योग्य होता है। अगर उसका जो है क्षेत्र अगर तैयार हो जाता तब गुरु उनको इष्ट दर्शन कराते हैं। तो ये जो सीताराम तो तुम्हारा गुरु है नहीं, और तुम जबरदस्त कह रहे हो कि इष्ट दर्शन करवाइए। ये मामूली बात है नहीं, ऐसा सिर्फ मांगने से ऐसा नहीं है कि है पॉकेट में दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। फिर ऐसा हुआ, कन्हई जी ने बताया कि बाबा तब स्पर्श मणि जो है उसका कोई क्षमता नहीं है। आप सारे दुनिया को एकदम पागल कर दिए हैं। इतने सब सारे भक्त लोगों के अंतर पूरा आनंद में भर गया, प्रेम लाभ हुआ, भगवान का दर्शन भी हुआ। हम तो इतना ही चाहते हैं, और आप किसी को अगर स्पर्श करते हैं तो लोहा होते हुए भी वो सोना बन जाता है। तो हमारे इतना दुर्भाग्य क्यों कि मैं आपके पास प्रार्थना कर रहा हूं और आप इनकार कर रहे हैं। फिर बाबा ने बताया कि देखे तो स्पर्श मणि का बात किया ना, अगर लोहा में कोई गर्दा रहेगा, मैल रहेगा तो स्पर्श मणि से काम नहीं होता है। तो उन्होंने बताया कि क्यों आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, स्पर्श मणि का कोई क्षमता ऐसा है नहीं, वो अगर मैल रहेगा तो स्पर्श मणि कुछ नहीं कर पाएगा। और आप ऐसा बता रहे, क्या ऐसा क्या मैल है हमारे में। फिर बाबा ने उनको बताया कि इतना क्यों आप इतना क्यों कंजूसी कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं, हमारे समय आप कंजूसी कर रहे हैं, बाबा कृपा कीजिए। इष्ट दर्शन ही मेरा प्रार्थना है, आप करवा दीजिए। बाबा ने बताया कि देख तो पहले चावल दिया, दाल भेजा, अनाज भेजा, ये सब लाया, फिर केला लाया,
हमको बताया कि 10 मिनट के लिए एक बार आइए और लाके तुम घर में हमको हमको एकदम ताला लगा कर रख दिया। रखो भाई, तो ये जो कर रहे हो ये तो छलना होता है। तुम तो वहाँ नहीं बताए थे कि हम उधर जाके आपको ऐसा करेंगे। ये छलना हो गया, ये तो ठीक नहीं है। यही है, यही मालिन्य है। थोड़ी देर के लिए कन्हैया जी रुक गए। फिर बाबा ने बताए, बड़े गंभीर स्वर से बताए कि ठीक है, जितने सब आए हैं ना आश्रम से, सबको निकाल दो यहाँ से, और सीताराम को तुम्हारा जब तक इच्छा तुम पास रखो, दरवाजा बंद कर दो, ताले लगा दो। वैसा ही हुआ। और इस भी एक साथी गए, पर थोड़ा दूर जाके फिर लौट कर आए, और क्योंकि उनका मन में चिंतन हो गया कि ऐसा कन्हैया जी क्यों ऐसा कर रहे। इसमें बाबा का ऊपर तो पीड़न हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक बार सब बताएं कि देखो चलो कन्हैया जी को हम लोग बांधेंगे और बाबा को लेकर लौटेंगे। एक बार बाबा को कहे भी, बाबा हम कैसे जाएं, आपको बिना लेते हुए हम आश्रम में कैसे लौटेंगे। बाबा ने बताया, देखो ये तो हमको अटक के रखा है, हम कैसे जाएंगे, तुम लोग जाओ। तो ये एक बार बोले कि देखो कन्हैया को बंद के रखेंगे। फिर दूसरे एक संत ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक काम करो, गांव में जो बुजुर्ग आदमी हैं इसमें से किसी को बुलाओ और बड़े कह के मैंने समझा के ये जो है ठीक करना पड़ेगा, ये जो समस्या होगा इसको ठीक करना पड़ेगा। जब गए किसी को ढूंढ के लाने के लिए, इस बीच में कन्हैया जी एक बड़े जो कटारी होता है, वो बंगाली में बोलता है कि रामदा, एक कटारी होता है जिससे वो जो बलिदान के समय लगता है ना, खड़ग, वो लेकर बाबा के घर में घुसे और भीतर जाके फिर दरवाजा बंद कर दिया। सबका भीतर में हुआ कि ये खड़ग लेकर क्या करेगा रे भाई। बाबा के घर में फिर चला गया, माता ठीक है ना। तो इस बीच में वो जो है वो आ गए, फिर आकर उनको समझा करके ताला खुलवाए। बाबा को फिर ऐसा बताया कि ठीक है, अब आप वो जो आए वृद्ध जो आए थे, उन्होंने बताया कि बाबा आप इनको क्षमा कीजिए, जो कुछ किया बच्चा है, भूल किया, हम माफ़ी मांग रहे हैं, तो इनके ऊपर कृपा रखिए, बोलकर चले गए। तो बाबा लौट के आए। फिर उस समय बाबा तो जब ये हुआ था, ये खड़ग लेकर घर में घुसे, बंद किए, इस समय बाबा तो समाधिस्थ थे, बाबा का कुछ पता ही नहीं था। 10-15 मिनट सीताराम कीर्तन के बाद बाबा जब हमारे बीच में आए, तब बाबा को पता चला कि ये सब बीच में हो गया। बाबा तो अंतर्यामी है, सब कुछ बाबा का मालूम ही है, पर बाबा ऐसा करें कि भैया अभी तक तुम लोग इधर ही हैं। तो बोले बाबा हम क्या करें, पर तू आश्रम पे खबर दिया कि नहीं। बोला हाँ दिए। तो बाबा बोलते तू माँ को खबर दिया, माँ कुछ जलपान किए कि नहीं। बोला हाँ बाबा आप जब बताए थे तो उसी समय हम लोग कोई दो एक आदमी तो उधर चले गए थे और माँ को बताएं कि आप जलपान कीजिए कि बाबा उधर समाधिस्थ हैं। तब तक बाबा बात कहें कि आप लीजिए। बाबा बोला ठीक है। तो फिर बाबा ने बताया कि देखो उधर नाम चल रहा है कि बंद हो गया ना। बोला नहीं, नाम तो चल रहा है बाबा, सब ठीक है, वो सब ठीक रख कर ही हम इधर आए। देखिए बाबा समाधि से उतर कर किस किस चीज़ का खबर ले रहे हैं। बीच में बाबा यह बताते थे कि अभी तक तुम लोग सुबह से जल तक
पिया नहीं, कुछ नहीं तुम लोग लिए, ये तो हमारे लिए, ये तो हमारे लिए कहते हुए बाबा समाधिस्थ हो गए थे। अब जब समाधि से बाबा उतर रहे हैं तब बाबा पहले खबर लेते हैं ठाकुर माँ के, उनके माँ के, कि माँ जलपान किए कि नहीं, इतना देर हो गया। हम जो बताए थे कि जाओ माँ को जाके कहो कि जलपान कर लें, क्योंकि हमको यहाँ अटक कर रखा है। तो सब बताए कि ऐसा हुआ है। फिर बाबा धीरे धीरे वो जो तब अंधेरा आ रहे हैं। अब कन्हैया जी की एक हैसक जलाए, और जला के तो वो तो धान खेती जो है ना, वो खेती का बीच में जो रास्ता होता है वो रास्ता तो अच्छा नहीं होता है, और उधर सांप निकलता है उसमें, और मतलब रास्ता अच्छा नहीं है, डर के बात है उधर। तो हैसक व्यवस्था की है कि ज़्यादा प्रकाश हुआ साथ में, वो हैसक लेकर आगे जा रहे हैं। और बाबा तो ऐसा कैसे जाएंगे, कैसे चलेंगे उस रास्ते, तो रास्ता तो खराब है ना। तो बाबा को कंधे पे लिए एक वक्त कन्हैया जी ने, जो संत लोग उधर थे उसी में एक, फिर बाबा को लेकर आश्रम में पहुंचे। तो उस बीच में हैसक, वो कन्हैया जी जो सेवा में जो हैसक जलाए थे ना, कन्हैया जी अब बाबा के पीछे पीछे आ रहे हैं, आश्रम पे आ रहे हैं। इतना देर तक बाबा को रुके, बाबा का जलपान तक नहीं हुआ। सुबह से सब कुछ जो हुआ लीला, ये सब कन्हैया जी ने किया। दरवाजे में ताला लगाया, खड़ग लाया, ये सब जो हुआ उनका ही है। पर जब शाम पे अंधेरा आ रहा है तब वो हैसक लगा के वो आगे आगे जा रहे हैं। ऐसा हुआ हैसक बंद हो गया, अंधेरा हो गया पूरा, उनका प्रकाश नहीं मिला किसी का। पर वो धीरे से धीरे आश्रम में बाबा पहुँचे। जब बाबा आश्रम में पहुँचे तब ऐसा हुआ कि माँ बैठे हैं, कब आएंगे, ये वो कब लौटेगा। खबर मिला कि बाबा आए, माँ बड़ी प्रसन्नता से बाहर आई। बताया तो इतना देर हो गया तेरा, वो क्या करेंगे, उनको तो अटक दिया था। है कौन क्या, जैसे माँ कहते हैं ना, बेटा को माँ कहते हैं, ऐसे ही बहुत बड़ी प्यार से। देख अब तो तेरा सब व्यवस्था है, तो जल्दी सब कुछ व्यवस्था करो, ठाकुर जी को लगाओ, और लगा के पहले कुछ भोग लगाओ। सुबह से कुछ नहीं खाया पिया मेरा बेटा। माँ का मन थोड़ा उथवला हुआ। फिर पर ऐसा था लीला उस दिन, देखिए कहाँ से बिल्ली आ गया। जब प्रसाद मतलब माने सजा के ठाकुर के सामने दिया जाएगा, उसके बाद ठाकुर लेंगे, बाबा लेंगे तो ठाकुर के सामने दिया जाएगा। उस समय घर में जाके देखा गया कि कहाँ से दो बिल्ली आया, और दो बिल्ली आकर ये जो है जो रंधन किया हुआ जो या जो कुछ था प्रसाद के, वो लोग खा रहे हैं। ठाकुमा सब एकदम उठा के ले गए और तालाब में पूरा डाले, बर्तन मले, फिर आके एकदम नया जो प्रसाद बनाए। रात हो गया। उस समय फिर संध्या का जो कीर्तन बंदन सब हुआ। फिर नया प्रसाद माँ ने, ठाकुर माँ ने बनाए, और फिर जो भोग के बाद बाबा ने स्वीकार किए। और ऐसा था कि दूसरे दिन वो कन्हैया जी उनके धर्मपत्नी को साथ लेकर बाबा के पास आए और दीक्षा लिए। क्योंकि जब उनका मन में, उनका घर पे बाबा समाधिस्थ हुए थे,
जहाँ बाबा समाधिस्थ हुए, मतलब उस जगह में बाबा का शक्ति बैठ गया। जरूर ऐसा है। आप अगर किसी स्थान में कुछ करेंगे कि मतलब उधर उस शक्ति का प्रभाव होता है एक स्थान। इसीलिए तो आसन के ऊपर इतना जोर है ना, कि आसन को, जिस आसन में हमारा दीक्षा होता है, इस आसन में और दूसरा काम नहीं चलता है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ भगवान को बुलाएंगे, वही काम इस आसन में होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। तभी हम जब बैठेंगे तो मन भगवान को ऐसा ही बुलाएगा, क्योंकि इस आसन में वही काम होता है, दूसरा काम नहीं होता है। तो जहाँ बाबा समाधिस्थ होते हैं उस जगह में उनका शक्ति बैठ जाता। तो उस घर में ये शक्ति देने के लिए ही बाबा उधर गए थे। ये जो अटकाया गया और जो कुछ है ये सब बाबा का लीला ही है। किसी के पास इतना क्या शक्ति है कि बाबा को कोई अटकाए, कोई बंद करके रखे? साहब हिम्मत किसी का है? पर ये बाबा का इच्छा है। बाबा ये लीला करने वाले थे कि कन्हैया जी बाबा का सेवा करते थे, क्या मांगे थे? इष्ट दर्शन करवाइए। बाबा ने बताया, अरे सीताराम तेरा गुरु है नहीं, ये तो गुरु का काम है, तू जाके अपने गुरु को बोल रहे थे, देख तेरे भीतर इतना मालिन्य है, कैसे हो पाएगा? अब ये मालिन्य ये हटाने के लिए, और जो है कि गुरु रूप में अब बाबा को स्वीकार करने के लिए कन्हैया जी आ पहुंचे और उनका दीक्षा हुआ, पूरा कृपा मिल गया। मतलब जो घटना जो कुछ हुआ था, बाबा जब लौटे हैं फिर भी ले आकर प्रसाद खराब कर दिया, फिर नया हुआ, बाबा एकदम शांत। जितने लोग उस समय चातुर्मासी के बेचे उधर दशहरे आश्रम पे सब थे, उस दिन इतना चातुर्मासी में एकदम आनंद चलता था उस भीतर में। ये दिन पूरा तो एकदम सारी चीज तो एकदम बिगड़ गया था ना, तो सबका मन थोड़ा हिल गया था। पर बाबा ने बड़े शांत थे, और शांत रहते हुए बाबा कहे कि देख, भगवान जो करता है सब मंगलमय भगवान जा करें तिनी सभी मंगल गाहे वेद पुराण। यह बाबा का वाणी है। मतलब भगवान जो कुछ करते हैं सब मंगल है। यह बात हम वेद और पुराण यही बात हमें कहे हैं, बाबा ये बताए हैं। तो और एक बाबा का लीला स्मरण करते हुए आज बाबा का हमारे ये जो गुरु पूजन है इसको हम विश्राम देंगे। ये जो घटना है, ये घटना बोलपुर का है। ये जहाँ विश्व भारती है ना, बोलपुर शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो विश्वविद्यालय है, जिस नगर में है वो बोलपुर है। बोलपुर बाबा का बड़ी पुराना स्थान है, बहुत सारे भक्त उधर है बाबा का। उस समय सब आ रहे थे। तो बोलपुर में एक बाबा का भक्त रहते थे, उनका नाम था अशोक मित्र जी। अशोक मित्र जी और उनके परिवार बाबा का परम भक्त थे। ऐसा हुआ एक रोज सुबह रात में जब सोए तब बाबा के लिए मन ऐसा थोड़ा चिंतन हुआ कि बाबा को एक बार बाबा के पास एक बार जाएंगे। बाबा को अभी नहीं देखेंगे तो लगता है कि अभी प्राण चला जाएगा। सुबह उठे तो देखे कि आकर्षण और ज़्यादा हो गया, बाबा के पास अभी दौड़ के जाना है। तो उनके जो है स्त्री को, धर्मपत्नी को बताएं कि देखो यहाँ मन नहीं बैठ रहा है, अभी बाबा के पास जाना पड़ेगा। बाबा तब महामिलन मठ में थे। महामिलन मठ एकदम
नए नए बन रहा था। तो उधर से वो जल्दी आ पहुंचे। आकर बाबा तब प्रार्थना करा रहे थे। तो प्रार्थना हुआ, सब कुछ हुआ। बाबा बड़े प्यार से उन आदर से उनका स्वागत किए, बताए कि कैसे हैं, तो इतना सुबह आ गए हैं। तो फिर बताए कि बाबा कल रात में तो ऐसा हुआ था कि आपके पास आने के लिए मन थोड़ा चंचल हुआ था। आज सुबह ऐसा इतना आकर्षण हुआ, घर में रह नहीं पाए, एकदम दौड़ के आए। बाबा ने थोड़ा मुस्कुराए, बताया ठीक है। फिर अशोक मित्र जी, ये बोलपुर वाले, उन्होंने बता रहे हैं बाबा को कि बाबा एक गलत हो गया, हमें एक गलत हो गया। बाबा ने बताया ऐसा क्या गलत हुआ रे? बोला आप पहले हमको माफ़ी हम मांग रहे हैं, आप पहले हमको माफ़ कर दीजिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल में। क्या हुआ, कैसा क्या किया? अशोक जी बताए कि बाबा सुबह निकल कर आए और घर में जो ठाकुर जी हैं उनका ना पूजन हुआ, ना भोग लगाए, ना कुछ। ऐसा तो ये हर समय हम करते थे ना, तो जहाँ पूजन होता है हर दिन, आज तो कुछ नहीं हुआ। सुबह एकदम दौड़ के मांगे। बाबा बहुत बताएं कि देख, जिनका पूजन वो लिए हैं, ठीक है, इसलिए तो चिंता करते हैं। जिनका पूजन वो लिए हैं, पूजा लिए हैं। अब प्रसाद हो गया, उसके बाद बोलपुर में लौटेंगे। अशोक मित्र जी गए, दोनों गए, स्वामी स्त्री दोनों गए। और बाबा बताए कि देख अशोक, तू लौट के एक बार खबर करना कि ठीक से हम घर पे पहुंचे हैं, खबर करना, इतना ही बताएं कि तू एक बार घर पे पहुंच के एक बार इधर खबर करना। जब ट्रेन पे आके चढ़े, अशोक जी के मन में थोड़ा ऐसा हुआ कि उनका स्त्री को बताएं कि देखो मन में कैसा हो रहा है कि बाबा तो कभी ऐसा बात तो करते नहीं, लौटते समय बाबा ऐसा क्यों कहे? बाबा का तो ये धारा है नहीं कि बाबा किसी को कहे कि देखो तुम उधर पहुंच के एक बार खबर करना। ऐसा तो बाबा कहते नहीं, क्यों कहे? घर में सब ठीक है ना? कुछ हो गया, कुछ अशुभ कुछ हो गया क्या? बड़ा डर हुआ। पर जब घर में पहुंचे तब देखे कि नहीं, घर का दरवाजा तो बंद है, ताला वगैरह सब कुछ सब ठीक ठाक है। ताला खोले, भीतर गए। भीतर ताला खोलकर दरवाजा खोलते ही भीतर से बड़े सुगंध मिला। घर में बहुत अच्छा गंध मिल रहा है। फिर उसके बाद हाथ पैर धोकर गए उधर ठाकुर जी के घर पे गए। जब गए तो अब जो देखे उसमें पूरा रो पड़े, एकदम रो पड़े। बताए कि उधर ठाकुर जी का जो है पूरा जैसे हर रोज होता था वैसा ही फूल दिया हुआ है, पूरा पूजन हुआ, सारे घर में सुगंध हो गया और वही सुगंध एकदम बाहर तक आ रहा है। और भोग जो है वो बाबा के सामने रखा हुआ है और कुछ नहीं करके उन्होंने निकले थे और इधर सब कुछ हो गया। और जो बाबा के चरण में, बाबा का चित्रपट के सामने जो फूल दिया हुआ है वो एकदम जो है कि ताजा फूल जो है, जब ऐसा लगता था कि आभी दिया हुआ फूल है। रोते हुए उनके स्त्री को बुलाए कि देखो बाबा का लीला देखो, कि बाबा बताए थे ना कि जिनका पूजा वो लिए हैं, जिनका पूजन वो लिए हैं। अब देखो, ये देखो, पड़ोसी को बुलाए, गुरु भाई लोग को बुलाए
और बुला बुला कर दिखाया कि देखो ऐसा हुआ, हम लोग सुबह चले गए, कुछ नहीं करके गए, और बाबा को जाके बस सिर्फ इतना ही बताए थे, और बाबा ये बताए थे कि जिनका पूजा वो लिए। अब घर में आके ऐसा हम देख रहे हैं। अशोक मित्र जी का मन इतना आनंद में भर गया, 2 दिन कुछ उनका ना कहने पाए, ना कुछ खाने का इच्छा था। आनंद में पूर्ण हो गया इस अनुभव में। बाद में जब बाबा से फिर मिले थे तो बाबा को जाके बताएं कि बाबा ऐसा हुआ था घटना। बाबा एक बार उनको आंख से आंख मिलाकर उसको देखे, उस आंख में ये अशोक मित्र जी का जो अनुभव था, उस पूरे अनुभव का जितना प्रश्न हो सकता है सबका उत्तर दिया हुआ था। बाबा ने सिर्फ आंखों से आंख मिलाकर कुछ नहीं बताए, प्रसन्न मुद्रा में आंखों से आंख मिलाए, सब प्रश्न का उत्तर मिल गया था। और ये अशोक मित्र जी धन्य हो गए थे। इतना ही नहीं, यह घटना अब बोलपुर में बाबा का जितने लीला हुआ था ना, उस लीला में एक महत्व रखता है। उधर का सारे भक्त लोग ये अशोक मित्र जी को बाबा का एक परम भक्त आज भी मानते हैं। हम भी मानते हैं कि कितना कृपा उनके ऊपर बाबा का था कि जब भीतर में इतना ही हुआ था कि घर में बाबा का चित्रपट जो है उसका, जैसे कि घर में कोई पिता माता या कोई बच्चे को छोड़कर आ गए और उसका जो कुछ हमारा करना था वो हम किए नहीं, इसलिए एक तो बाबा का आकर्षण से दौड़ के बाबा के पास आए, और भीतर एक हो रहा है कि घर में ठाकुर जी रह गए, उनका सेवा तो कर नहीं पाए। ऐसे बाबा दिखाएं कि देखे तो जहाँ आया वही तो है तेरे घर में। मतलब हमारे घर में बाबा हर समय रहते हैं। हम जब बाबा का पूजन करते हैं तो ये पूजन हम नहीं करते हैं, बाबा हमको पूजन करने का सौभाग्य देते हैं, ये मौका देते हैं, ये सौभाग्य देते हैं, तब हम पूजन कर पाते हैं। ये जो पूजा है, ये जो पूज्य हैं, ये बाबा ही हैं। और बाद में पता चलता है कि बाबा का जो बेटा ना जो पूजा कर रहा है उसमें भी बाबा ही बैठे हुए हैं, क्योंकि मंत्र रूप में गुरु शिष्य के शरीर पे हर समय विराज करते हैं। यह जो बाबा का ये लीला का ये जो वार्ता ये हमें मिलता है बोलपुर के अशोक मित्र जी के सूत्र से। आज